okay, I am asleep, my mind is not working, but I'm understanding what someone is saying now. 112 विधियां हैं ओशो की, जिसमें ओशो ने बताया है कि किस किस विधि से पाया जा सकता है मोक्ष को। आई वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय ओशो। आप मतलब एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखो और आपको इंसान का पूरा पता लग जाएगा। जो हम करते हैं सांसों को देखना, दैट इज नॉट विपसना। विपसना इज वेरी डीपर देन दैट। तो उनके तो जैसे बैक से ना चीजें स्टार्टेड टू डिसअपियर, वो इतना ज्यादा तराट तक पहुंच गया था। स्पिरिचुअल ईगो इज द वर्स्ट ईगो। दिस इज द ओनली ग्रंथ जिसको सिर्फ सुन के राजा जनक एनलाइटन हो गए थे। A hardcore spiritual seeker. She has touched everything under the umbrella so far. I don't think कि आज तक इतनी ब्यूटीफुली किसी ने ये बात रखी है, इतनी क्लैरिटी के साथ। एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी वास्ट थिंग। आई डोंट थिंक जो आजकल के पंडित है उसको जस्टिफाई करते हैं। आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया? ईगो को ड्रॉप करना है यार। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट नोइंग एनीथिंग। यू कैन नॉट नो एनीथिंग। खाने को भी एम्ब्रेस करती हूँ मैं, सोने को भी एम्ब्रेस करती हूँ मैं, लाइफ की ब्यूटी को, आर्ट को भी एम्ब्रेस करती हूँ फुली। इतनी प्रैक्टिसेस के बाद हाउ ब्रॉडली आर यू सीइंग योर लाइफ? आई डाइड इन वाटर, मे लाइक इन पास्ट लाइफ। तो वो क्या होगा, आई विल ड्रैग इट इनटू माय दिस लाइफ। मतलब आई विल फील अंडर द वाटर ऑल द टाइम। तो अगर मेरे को किसी ने छुरा मारा है तो मेरे पेट में भी दर्द ही रहेगा। You do not know how to let it go. And witchcraft also, and I think in many traditions there is a thing with mirror, because you are seeing your reflection into it. What was your experience with art of living? When you come in a body, you're like, now what the fuck have you chosen? I am in another zone. शायद सुन के मेरा enlightenment हो रहा है। नमस्ते व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द मिड शो। एंड अगर आज आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो लेट मी टेल यू, इट्स अ स्पिरिचुअल पॉडकास्ट। वी टॉक अबाउट द ऑथेंटिक रियल स्टोरीज, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज ऑफ स्पिरिचुअल सीकर्स, एंड ऑल्सो वी कनेक्ट विद spiritual masters to get into deeper insights for all of us who are in spiritual journey looking for spiritual growth. And on that note, today we have Madhuri Sankhyan on our show today, and she's an HR by profession but a hardcore spiritual seeker. She has touched everything under the umbrella so far, from Vipassana, art of living, breathwork, tarot, astrology, and so much more. A very warm welcome, Madhuri, to the Med Show. How are you today? I'm good, Ashika. How are you? I'm good. I'm good. So I am very curious to know about your journey and what actually are you seeking through all of these modalities, healings, and spiritual courses. But before we dive deep into your journey, let's just take 2 minutes, connect with the divine energy, and set an intention of why we are doing this podcast. And I would publicly share my intention, and I would request or invite you to share that. You share your intention as well if you are comfortable doing that. So let's just take 2 minutes. So, Madhuri, I'll invite you to share your intention with us. So my intention for this podcast will be maybe sharing the knowledge, sharing the experience. I think if someone gets maybe 1% insight into their spiritual journey, or maybe if they get resonated with the journey I am going through, so I think that will solve the purpose. So even if I can help one person who can resonate, that will be great. Amazing, amazing. And I have a vetted interest in your journey. I want to understand how life looks to you from your level of consciousness. So, as per my understanding, you have gone through a lot of courses and I think 9 years of Vipassana practice. So, everyone who is not into spirituality, life is very concentrated for them. And as per my experience, when you raise in your consciousness, you see a more broader picture. And I want to understand how it looks to you after all these years of practice. And for the viewers, I want to understand, I want to convey, I want to bring this to the light that once you understand that your soul growth is the only thing that matters, knowing yourself is the only thing that matters, then this kind of shift happens in the life. So now stage is yours, and I'm so excited to listen about your journey, how all of these things came into your life, why you were so pulled towards all of these courses, and what made you keep going in this journey. Yeah, so I think it all started when I was in fourth, I suppose, and my parents they follow Osho. They are Osho sannyasis,
though my mother has been in again lot of modalities, right? But from the point of view of that generation, ठीक है, that कभी इस तरफ incline हो गए, उस तरफ incline हो गए. And my father was hardcore Osho fan. तो एक कैसेट आती थी उस टाइम, यू हैड टेप रिकॉर्डर्स एंड ऑल, यू नो. तो Mhm. देयर वाज अ कैसेट, मैं कौन हूँ, ओशो की 1 घंटे का रिकॉर्डिंग था उसमें. उसमें मेडिटेशन भी था एंड में ऑफ 20 मिनट्स. सो व्हाट वी यूज टू डू, हम स्टीरियो चलाते थे एंड वी यूज टू कुक, मी एंड माई कजन. तो वैसे ही वो चलाया एंड आई वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय ओशो बट एट दैट टाइम ऑल्सो. मैं सुनती थी 2 घंटे का पॉडकास्ट एंड 3 दिनों तक आई वॉज लाइक लॉस्ट. आई वॉज लॉस्ट कि क्या चल रहा है, वाओ यार, मतलब दिस इज ऑल्सो रियलिटी ऑफ लाइफ, मे बी In सम fourth standard. fourth standard. Fourth, it was fourth Oh standard. my god. आई वॉज लाइक fascinated by his words कि वाओ. मेरे डैड कार में भी वही चलाते थे. तो वो मैं कौन हूँ मेडिटेशन वॉज, इट वॉज लाइक यू आर आस्किंग योर सेल्फ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं ये हूँ वो हूँ. एंड आई सैट देयर एंड इनोसेंट माइंड एंड आई वेंट डीपर इनटू इट एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि ये क्या हुआ. सो दैट वाज फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड. सेकंड थिंग, माय मामा वाज ही यूज्ड टू डू मेडिटेशन फॉर लाइक 8-9 hours. अ, वो ओशो को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हमारे घर में. तो उनको बहुत फैसिनेशन था मेडिटेशंस के साथ. एंड जस्ट टू टेल यू, मतलब मे बी आई कंटिन्यू, अदरवाइज वो स्टोरी खराब हो जाएगी. तो मामा, माय मामा यूज्ड टू डू त्राटक. आई होप यू आर अवेयर ऑफ 112 विधियां हैं No, ओशो. no, no. 112 विधियां हैं ओशो की, जिसमें ओशो ने बताया है कि किस किस विधि से पाया जा सकता है, जाना जा सकता है मोक्ष को. तो उसमें से एक त्राटक भी है, विपस्सना भी है, राइट? सो Hmm. आप जिस भी तरीके से जाते हो पहुंचते आप वहीं हो. मतलब वी कैन गो डीपर इनटू इट इफ यू वांट टू कंपेयर टू Yes, दैट. yes, 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 वी please. कैन डू दैट. तो वो त्राटक करते थे और वो रात में विपस्सना करते थे, जो कि मेरे को विपस्सना करने के बाद पता चला कि विपस्सना रात को नहीं की जाती है और विपस्सना करने का तरीका और है. जो हम करते Hmm. हैं सिर्फ सांसों को देखना, दैट इज नॉट विपस्सना. विपस्सना इज डीपर, वेरी डीपर देन दैट, राइट? तो वो सांसों को Hmm. देखना तो विपस्सना में भी 3 ही दिन सिखाते हैं. उसके बाद आना पाना बोलते हैं जिसको, एंड देन वी go deeper into our physical body and we visualize our, not visualize, we see our sensations as they are, right? तो मैं उनके साथ नाटक करने बैठ गई. 6th क्लास की Fourth बात है. standard. नहीं Oh, नहीं, ये sixth सिक्स class. सेवन्थ की बात है, ये 6th 7th की बात है. तो उनको होता था कि तू भी बैठ, और मेरे को उन चीज़ों में फैसिक, मैं त्राटक करने बैठ गई. वो शीशे वाला त्राटक करते थे एंड इट इज, मतलब Can you explain a little bit what is Tratak? I have Tratak no is, clue. you are concentrating. Tratak is mainly, it is explained in yoga. तो yoga में, yoga is said to be preparation of pranayama and pranayama is said to be preparation of sadhana. तो it is not like yoga is everything. आजकल तो हम physical practices ही कर रहे हैं योगा में, but it is actually a preparation for प्राणायामा. सो प्राणायामा इस सांसों का आना जाना. जब तक आपकी Hmm. नर्व्स नहीं खुलेंगे, आपकी बॉडी नहीं खुलेगी, वो सांसें Hmm. आपकी बॉडी से, नर्वस सिस्टम से, दे कैन नॉट फ्लो फ्रीली, right? Hmm. And then through pranayama, once your nervous system is fully opened up and strong, then you go into sadhana. तो आपकी साधना टिकेगी, आपने उसके लिए प्रैक्टिस Hmm. की है. तो त्राटक साधना मतलब में, you can sit for longer duration तो once you त्राटक go आता है through this साधना flow. में. Tratak Hmm. comes in sadhana of yoga. Tratak is you Hmm. are looking at one point and you're concentrating in one point and things just starts to disappear. तो बहुत तरह के त्राटक होते हैं. आप किसी एक चीज पे, आप किसी गुरु की फोटो पे त्राटक कर सकते हो, आप पॉइंट पे कर सकते हो, आप मेनली ज्योति पे किया जाता है, विच इज कॉल्ड Candlelight way. कैंडल लाइट पे, क्योंकि So how long that practice is? 1 hour, 2 hours? it starts with the 5 minutes or 7 minutes. You shouldn't push it. It becomes very dangerous, and I'll tell you how it became dangerous for him. And he did it on the mirror. Mirror देख रहे हो आप अपनी image को. And I think in witchcraft also, and I think in many traditions there is a thing with mirror because you are seeing your reflection into it, right? आप अगर you are saying something to yourself to maybe motivate yourself, आपको बोला जाता है मिरर के पास जाओ, मिरर के पास जाओ, because you are seeing your reflection. You and in astrology also there is like शीशा नहीं होना चाहिए आपके जहाँ आप सोते हो. डिप्रेशन, यू फील मोर डिप्रेस्ड, वो कैद हो जाता है शीशे में, आपके बेड के सामने शीशा नहीं होना चाहिए. तो देर आर फ्यू थिंग्स विच आर रिलेटेड टू मिरर. सो ही यूज्ड टू डू दैट त्राटक ऑन मिरर. तो उनकी तो ऐसी स्टेज थी, ही डिड इट फॉर एन ईयर और टू. तो उनके तो जैसे बैक से ना चीजें स्टार्टेड टू डिसअपियर, वो इतना ज्यादा त्राटक पहुंच गया था कि वो चीजें डिसअपियर होने लगी थी. बट फॉर मी, So how long he used to sit for for that? Trataka, he reached to a phase that he was sitting for an hour. Tratak is आपने आंखें झपक ली, then you just go, मतलब आप बंद कर देते हो उसको. आप एक ही टक देख रहे हो, जैसे ही आपका ध्यान हटा आप बंद कर देते हो. You shouldn't do it too much also. That is also bad. It's very bad for your, मतलब it's very bad if you're not spiritually aligned and आपका nervous system open नहीं है and you do some practice which you cannot take upon your body. तो I used to sit with him बच्चे की तरह and 6-7 दिन में बैठी. And I had few experiences कि my body started moving up. So shisha was like oval in the shape at that time, जैसे dressing tables आते थे in 90s, right? And I thought my body has starting rising up.
and I started doing vipassana with him. Or I was in my class and I was there and I was not there, and I was like, something very weird is happening, and I stopped doing all those things. I started crying. घर आई मैं, and my mother told my mama कि don't, she's a child, ये सब मत कराओ इसको. She'll have her time and she'll do it on her own. After some time, it's after a few years, my mama is he's not mentally well right now, just because he did too many practices, which came onto him, right? Was Because he doing all these practices under a guru or no, all by himself? no, he wasn't. He Now was I doing can understand. Yeah. all by himself because I Osho cannot I Osho is very cannot popular. emphasize less on this that without a guru you don't know where to stop Right, or how right. much to do and in what direction you need to do. So I'm getting goosebumps right now. So this is a real life example. Yeah, this is he went in his past life and he saw things happening there, the way he was dying and all that. Or uh, I'm just giving you hypothetical example that I died in a water, maybe, right, in a past life. तो वो क्या होगा, I will drag it into my this life. मतलब I will feel under the water all the time. तो अगर मेरे को किसी ने छुरा मारा है तो मेरे पेट में फिर दर्द ही रहेगा. You do not know how to let it go, and it is written in books, Osho books and other books also, because it's not like it's a dream. You are living it. You enter it to see it, right, and you drag it into this life also. इस life If की you see that in your meditation without the supervision of a guru, then you drag it right in your life, in your current life. Guru can stop it. Guru can stop it. Guru has the tendency to stop it or guide you or take things on him. Then because हम मतलब my mother side is राधा स्वामी, तो उनको भी नामदान मिला है मेरे मामा को. जब वो सारा कुछ क्योस हो गया, स्टमक एक उनका स्टार्ट हो गया और 5-6 साल हो गए, एंड ही हैड कांस्टेंट स्टमक एक कांस्टेंट, एंड उसका कोई इलाज नहीं था, पता ही नहीं था प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम वही थी कि यू हैव रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था. कुछ भी नहीं, नथिंग, नथिंग, सब करा के देख लिया. यू हैव टैप्ड इनटू समथिंग यू आर नॉट अवेयर ऑफ, एंड नाउ व्हाट? सो ही स्टार्टेड गोइंग बैक टू दैट गुरु की मेडिटेशन, एंड वहां से चीजें थोड़ी संभल गई. थिंग्स गॉट फाइन. पर वो इतने साल जो खराब हुए ना, वो मेंटली आपको डिस्ट्रेस कर देते हैं. टू मच कॉन्शियसनेस ऑल्सो stresses you at times, right, when you're not ready for it, when you're pushing it, because kundalini is such a amazing concepts in foreigners right now. They do not understand that you're not ready for it, right? तो अगर हाँ. फिजिकली भी देखा जाए, नर्वस सिस्टम शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग इफ यू आर डूइंग अ कुंडलिनी प्रैक्टिसेस. So अदरवाइज this देयर हैव happens in our practice also. Sorry, I'm interrupting. no, no, This please. happens in our practice also. I mean, I am specifically learning Kriya Kundalini Yoga क्रिया under कुंडलिनी. Yoga Vidya Rishikesh. Yeah. So there also our Guruji he specifically said कि सबसे पहले शुद्धि जरूरी है. अगर आपके शरीर की शुद्धि, आपकी नाड़ियों की शुद्धि नहीं हुई है, and you go into these practices, it's not going to help you. और आज के टाइम पे मैंने देखा इतने लोग यूट्यूब से मेडिटेशन उठाते हैं, हिप्नोथेरेपी उठाते हैं और व्हाट इज़ दैट साउंड्स कुछ चलाते हैं बैक में, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी. सो हार्मफुल. यू डोंट इवन नो कि लो फ्रीक्वेंसी में जो आपको सुनाई नहीं दे रहे हैं, व्हाट इज़ गोइंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड. सो दिस इज़ लाइक आई वांट टू टेक दिस मोमेंट टू टेल ऑल द व्यूअर्स बी ऑन अलर्ट. आप अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हो, जो आप वहाँ से मेडिटेशंस उठा रहे हो, हिप्नोथेरेपीज उठा रहे हो, अपने आप बैठ के कर रहे हो, यू कुंडलिनी की प्रैक्टिसेस अपने आप कर रहे हो विदाउट अ गुरु watching you, supervising you, it's not going to take you anywhere. And what she just shared is a live example in front of all of us. Yeah, yeah, Sorry, it please is. continue. And I think it's better to go with the flow rather than creating a chaos to get it all, because spirituality में you cannot get it all. It is I think ये ego को drop करना है यार. Spirituality is not about knowing anything. You cannot know anything. You can learn something and you can practice and you can drop it all. It is dropping the all. मतलब जो भी आपके सोसाइटी की कवरेज है, या एक ईगो है, या एक मेरा एहसास है कि मैं हूँ, उसको गिराना है. एंड आई फील आजकल सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी में पीपल आर जस्ट गेनिंग ईगो. वी आर डूइंग दिस प्रैक्टिस. वो प्रैक्टिस आपकी ईगो गिराने के लिए, आपकी ईगो बढ़ाने के लिए नहीं है. दिस इज आई थिंक दिस इज माई मेन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम ऑल द थिंग्स आई हैव डन, कि सब ईगो गिरा के ही पाया जा सकता है. और दूसरों को दे आप तभी सकते हो जब आप खुद भी उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, या आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं ढल रहा है. अगर वो आपकी लाइफ में ढलता नहीं है, आप सिर्फ करवाने के लिए करवा रहे हो, आई डोंट थिंक सो it works in that way, because it's beyond logic. Like love is beyond logic, spirituality is also beyond logic. True, true. We couldn't have put it in
much better way the way you have said it. So I totally agree with you. So let's continue with what happened next in your journey. Yeah, so these were childhood things which happened, and then life goes on, right? And you get into the worldly things and job and all. And then I got married in 2016. Before that, I did Art of Living का. I have done Osho courses और ये सब parents भी करवाते थे. तो था एक fascination. It's not about spirituality. It's not about interest आता है. You can learn 100 things, but आप कैसे grasp करते हो ना उस चीज़ को, आपका intellectual level कैसे grasp करता है उस चीज़ को, वो So आप मैटर अपनी करता है. शादी से पहले भी आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज कर चुकी थी? हाँ, शादी से पहले तो बहुत कुछ, हाँ, काफ़ी कुछ आई हैव डन बिफोर मैरिज. विपश्यना भी एंड आर्ट ऑफ लिविंग भी? नहीं, विपस्सना आई स्टार्टेड शादी के बाद. उसके बारे में पता ही मुझे शादी के बाद चला. माय सिस्टर टोल्ड मी अबाउट विपस्सना. सो आई गॉट मैरिड इन 2016. आई थिंक इन 2017 आई वेंट फॉर फर्स्ट विपस्सना. आई डिड 7 to 8 विपस्सना आफ्टर दैट, बट आई वोंट से आई हैव कंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ विपस्सना. रेगुलरली मैं कर पाई हूँ, नहीं कर पाई हूँ. बट हाँ, विपस्सना चेंजेस समथिंग इन यू व्हेन यू आर सिटिंग फॉर 10 hours, फॉर ऑलमोस्ट 100 hours, for 10 days, right? 10 hours a day, things changes in you cannot deny it even if you want to. And things also comes on surface. बहुत चीज़ें surface पे आती हैं, और ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ें surface पे आती हैं. frankly speaking 80% बुरी चीज़ें आती हैं. ये जो हम spirituality में बोलते हैं ना, everything is bed of roses, ऐसा नहीं है. I think when you become more spiritual, you get connected to worldly pleasures more. I feel this happens. आप एकदम quit नहीं कर देते हो, लेकिन आपको ना समझ आने लगता है. You feel things more. गेम आपको ना क्लियर दिखने लगता है, कुछ कुछ हाँ. कुछ 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 और गेम, पजल पीस बाय आपको मज़ा पीस। भी आता है गेम में, ज़रूरी नहीं है गेम को क्विट नहीं करना है, क्विट क्यों करना है? ये हम्म। मेरा पहले थॉट प्रोसेस था, क्या यार क्विट करना है, क्विट नहीं करना है क्विट यार, इट्स इंटरेस्टिंग, लीला है यार, यू हैव टू प्ले इट टिल द टाइम यू कैन नॉट गेट इंडल्ज्ड इनटू इट, हाउ कैन यू गेट आउट ऑफ इट यार? टिल द टाइम यू डू नॉट नो, फिर वही चलता है ना। आई डोंट थिंक कि आज तक इतनी ब्यूटीफुली किसी ने ये बात रखी है, इतनी क्लैरिटी के साथ। पता नहीं यार, इट्स आई एम कमिंग फ्रॉम फीलिंग माय हार्ट वंडरफुल। हाउ आई फील। Coming from your experience, you know, there is a lot of difference between talking about something, preaching something that you haven't lived yourself, and something that you have lived and you're sharing. So sharing is magical, Yes. I think. So I have few questions here. What was your experience with art of living courses? आर्ट ऑफ लिविंग का आई लव्ड सुदर्शन क्रिया. सुदर्शन क्रिया इज अमेजिंग. आई वोंट से आई लव इट एज अ इंस्टीट्यूशन. आई लव एवरीथिंग अबाउट आर्ट ऑफ, आई लव नथिंग एज सच ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग. बट उनकी सुदर्शन क्रिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. इट्स वेरी एनलाइटनिंग. मतलब आई हैव सीन चेंजेस विद, वो आपकी बॉडी में, यू कैन नॉट डिनाई द, one cannot deny the energy you feel in your body, because I think it is mix of pranayama and other things. और वो आपका नाड़ी शोधन भी कराते हैं, so they get into yoga, they get into pranayama, they get into practices, then they come to sudarshan kriya. But sudarshan kriya is amazing. It's amazing as a practice. It's amazing. Art of living, then it's just I did it for sudarshan kriya, frankly speaking. My husband was connected with art of living for 2-3 years, very much dedicated to art of living. After that I started listening to Tao, Tao Te Ching, right? The philosophy of Tao is also, it's beyond anything you will ever read. Then I started getting into philosophies. Tao, Ashtavakra is also amazing. Gita and Osho का अगर आप सुनोगे गीता दर्शन, आपको एक अलग ही व्यू पॉइंट मिलेगा फॉर गीता. And yeah, so some spiritual philosophies like that, Ramana Maharishi की जो philosophy है about the self, that fascinates me like anything. I've been to Tiruvannamalai 1-2 साल पहले. And it was amazing. बहुत simplicity है. There is no pomp and show. It's just watch yourself. Just watch yourself. The self, what you call the self, just watch it. Amazing है. So yeah, there are a lot of masters. Neem Karori Baba, what we call the grace से आना. मतलब even when I talk about it, I get goosebumps and I get अच्छा लगता है. So, in your experience, reading all these philosophies was more enlightening, or the actual practice or the meditation, or does it cover up the experiences? So, let's say you read about something, आपने कुछ पढ़ा, and then your mind tries to create those experiences for you. ऐसा हुआ है कभी? मे बी आई कैन गिव एन एग्जाम्पल. जैसे एक पोएट होता है ना, वो एक पोएम लिखता है, तो वो हम्म। उस पोएम को पढ़ के या उसको लिखते हुए उसको जी सकता है, उसको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है. कुछ लोग प्रैक्टिकली समझते हैं, कुछ लोग सिर्फ पढ़ के समझ जाते हैं, कुछ लोगों के कोई चीज़ फंसी होती है दिमाग में, एंड समवन सम हायर पावर से दैट थिंग एंड यू आर लाइक, ओह इट वाज दैट सिंपल. क्योंकि आप उलझे तो अपने दिमाग में ही हो ना. अगर मैं फिलोसफी नहीं पढ़ रही हूँ,
तो ऐसा भी नहीं है मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ 24 घंटे, फ्रैंकली स्पीकिंग। मे बी आई एम जस्ट लिसनिंग टू, आई एम चेकिंग माई रील्स, आई एम सीइंग टू यूट्यूब। इट्स बेटर टू रीड समथिंग विच विल रेजोनेट। कई चीज़ें कॉन्शियसनेस में कनेक्ट हो जाती हैं, अटक जाती हैं आके। एंड आई थिंक इवन द मास्टर्स आर गॉन, बट उनकी एनर्जी है ना जो, इट्स नेवर गॉन, इट कम्स टू यू, इट ट्राइज टू स्पीक, ट्राई टू स्पीक टू यू। एंड एज आई सेड कि लॉजिक नहीं है इसमें, बट मास्टर्स एट टाइम दे कम एंड दे ये टॉक टू दिस इज यू वैसे। एक्सपीरियंशियल। या इस लाइक आप इसको आप पेंटिंग बना लॉजिक रहे से हो, नहीं कर सकते। पीपल कैन गेट एनलाइटन विद देयर पेंटिंग यार। मतलब देर आई डू नॉट रिमेंबर द नेम, कोई पंजाबी संत हुए हैं, वो चावल गिनते गिनते चावल वो करते थे, बोरी में डालते थे वो, तोल के, वो उसी से एनलाइटन हो गए। anyone can get enlightened by anything, it's just the concentration, it's the mind of the game of your mind, yeah, sorry, सारा True. खेल दिमाग का ही है। तो आई फील वो सब कुछ ना इंटरटेंगल है, मतलब वो आया क्योंकि मैंने अपना हार्ट खोला कि वो आए, तो फिलोसफीज भी आई, प्रैक्टिसेस भी आई, लोग भी मिले। और एंड आई थिंक अ वेरी वियर्ड थिंग टू से, आई थिंक आई हैव लर्नड फ्रॉम माई ड्रीम्स, ड्रीम्स एज इन स्लीपिंग ड्रीम्स। काफ़ी चीज़ें मेरे को जो फील हुई हैं वो ड्रीम्स में हुई हैं। आई यूज टू लिसन टू पॉडकास्ट एंड आई यूज टू स्लीप ड्यूरिंग लिसनिंग टू पॉडकास्ट, आई स्टिल डू एट टाइम्स, एंड दे kept on playing in the background, and I was in that sleep, but I was away from that mind। तो वो जो सबकॉन्शियस वाली एक जो स्टेट होती है ना, उसमें जब आप सुन सकते हो ना, एंड यू रियलाइज द मोमेंट कि ओके आई एम asleep, my mind is not working, but I'm understanding what someone is saying now। ओके नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग, अच्छा गीता में ये बोला गया था। आप वो जाके नहीं सुन सकते बहुत बार। अगर वो ड्रीम वाली स्टेट में आप उठ गए ना, and it actually helps, you are listening to podcast and you get into sleep and you're still listening it in dream, and you realize it's वो चल रहा है, वो आपको कहीं और पहुंचा देता है। मतलब जाग के हमारी इतनी रिस्ट्रिक्शंस है ना, हमारा दिमाग एकदम से उड़ जाता है, बट इन द ड्रीम द थिंग्स यू रियलाइज दैट, सब वो जो ड्रीम और जागने के बीच की स्टेट है ना, उसमें जो आप चीज़ें रियलाइज करते हो, आई डोंट थिंक यू कैन इवन रियलाइज इट इन एक्चुअल लाइफ। आप जितनी मर्जी मेडिटेशन कर लो, क्योंकि जिस स्टेट में जाना है ना मेडिटेशन करके, वो आपके एक्चुअल लाइफ में व्हेन यू आर asleep, अगर उसमें यू हैव दैट मच अवेयरनेस आ जाती है विद टाइम, which vipassana actually helps in such state। And I have started this feeling this state from vipassana, frankly speaking, my first vipassana। और ये मैं ही नहीं, आप आई थिंक जितने लोगों से बात करोगे, उनकी स्लीप नॉर्मल नहीं रही होगी जैसी रहती है, विपसना में स्लीप चेंज हो जाती है। एवरी ड्रीम फील्स लाइक इट्स रियल, और आपके जो डर हैं वो एकदम सरफेस पे आ जाते हैं इन योर विपसना प्रैक्टिसेस विच आई हैव फेल्ट। तो वो जो ड्रीम की उस स्टेट पे आके रियलाइज करना है ना चीज़ों को, वो आप जाके रियलाइज नहीं कर सकते। सो वन ऑफ माई बिगेस्ट टीचर हैड बीन माई स्लीप, एंड आई लव माई स्लीप। Amazing. I mean, this is something I've heard for the very first time. I have heard कि आप ड्रीम्स में you actually जो आप देख रहे हो आप उसको फील कर सकते हो. That has happened with me. I've heard from another guest also. But आप ड्रीम में जाके उस स्टेट को एक्सेस कर पाओ कॉन्शियसली भी. That is what I've heard for इट the very एक्चुअली first time. हैपन्स, इट एक्चुअली हैपन्स व्हेन, जब आपका पूरा माइंड स्पिरिचुअलिटी में चला जाए, स्पिरिचुअलिटी में भी नहीं, किसी प्रैक्टिस में चला जाए, एंड यू रियली वांट समथिंग सो बैडली, टू अंडरस्टैंड समथिंग सो बैडली, वो ड्रीम में एक्सेस होने लगता है। लेकिन उसके लिए माइंड बड़ा वो होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, बहुत चीज़ें चल रही हो ना दुनियादारी की, तो यू कैन नॉट। और वो 2-3 बार अगर इजीली एक्सेस हो गया ना, आई थिंक इट विल, यू कैन पिक इट अप इजीली, आप पिकअप कर पाओगे उसको इन वेरियस स्टेट्स, एंड यू एक्चुअली फील इट इन विपसना, बहुत अच्छे से फील होता है वो सब। Amazing. Yeah, even in breath work, I think everything is intertangled. You cannot say ये practice अच्छी है, वो practice अच्छी। हर चीज़ किसी ना किसी आपके चक्रा से जुड़ी है, आपके mental foundation से जुड़ी है। Everything is, um, everything Taking you is to the guiding you same towards place. home. It's guiding you towards home. Everything is guiding you towards home. Even the conflicts of office, conflicts of life are guiding you towards home, I feel। So on this note, when you talked about conflicts, how do you see your life now? I mean, पहले जब आप प्रैक्टिस नहीं थी, आई आपने तो आई थिंक फोर्थ सेवन सिक्स स्टैंडर्ड नहीं, से प्रैक्टिस भी नहीं योर थी, वो प्रैक्टिस दैट वाज़ ग्रेस। यू नो मतलब वो तो ग्रेस से आना है। मेरा तो उसमें कुछ भी नहीं था। इट्स जस्ट कि कोई अच्छा कर्म होगा या कोई ग्रेस होगा या गुरु। वो गुरु ग्रेसेस गुरु से होती है, उसमें मेरा तो आई कुछ थिंक कर्म कुछ नहीं। आपके पास्ट लाइफ के भी कर्मा रहते हैं, अगर आप वहां से प्रैक्टिस करते आ रहे हो तो यू कैरी इट इन योर नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो. सो हाँ, या मे या बी दैट. talk about past life and then I can give a lecture on astrology and things. So everything is connected. So yeah, I don't think my past karmas are too good. They are mix of everything because it's not one life, it's like 100 lives. But yeah, I might have started doing these practices before, maybe,
I don't know. I don't know. So when you talk, I have two questions here. First of all, आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया? सो एज पर माई एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज नॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी या मेरा कॉन्शियसनेस लेवल बहुत कॉन्सेंट्रेटेड था, आई यूज्ड टू गेट स्टक इनटू लाइफ सिचुएशंस कि ये नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, इसको ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए, सामने वाला ऐसा हो जाए, मैं ऐसी हो जाऊँ, लाइफ में ऐसा हो जाए. नाउ थिंग्स आर वे डिफरेंट. नाउ आई एम लाइक फ्लोइंग विद इट. I don't feel the need to control, and I am in a state of acceptance. So I just want to hear from you. इतनी practices के बाद, how broadly are you seeing your life right now? एक तो Do माय you get हैप्पीनेस, stuck in situations? हाँ आई डू, माई हैप्पीनेस डजेंट डिपेंड ऑन अदर पर्सन, तो वो थोड़ी देर चलता है. वो उतनी ज़्यादा टाइमलाइन है ना जो कॉन्फ्लिक्ट की, जैसे कि Hmm. समथिंग हैपन, एक लड़ाई होगी सपोज घर पे, राइट? पहले वो चलता रहता था इन द माइंड कि क्या हो रहा है, आगे क्या होगा. अभी थोड़ा टाइम चलता है एंड देन आई एम लाइक लाफिंग आफ्टर 20 मिनट्स, मैं भूल जाती हूँ कि कुछ हुआ था. तो वो टाइम फ्रेम बड़ा कम हो गया, कॉन्फ्लिक्ट इतना टाइम रह नहीं पाता, क्योंकि वो जो what you say कि when you know ना everything is changing, so I know it will also change. मतलब whatever is happening that will also change. Even the main जो हम विपස්සना में सीखते हैं, अनिच्चय, अनिच्चय is ever changing, the world is ever changing, it changes every moment, constant है ही नहीं. तो if everything is changing, तो मेरा माइंड ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया that everything will change, and also that everyone have their perspective to see things. फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को ज़्यादा, मतलब किसी भी चीज़ से कुछ भी हो जाए. आई थिंक I won't speak it on this platform, but just giving an idea. I have seen tough life, which is said मतलब बहुत tough life. I have seen that in every way. बहुत बुरा बुरा बोल सकती हूँ मैं. And I was very emotional person, very emotional. नाउ आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, आई एम स्टिल इमोशनल, बट आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ. तो जो भी आता है आई एम लाइक ठीक है यार, कोई सीन नहीं है, ठीक है. कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है मेरे को चीज़ों से इतना ज़्यादा जितना पहले होता, तो मेरे को परवाह भी नहीं रही है चीज़ों की इतनी ज़्यादा, कि फ्यूचर को लेकर इतना ज़्यादा डरती नहीं हूँ अब मैं कि क्या होगा और कैसे है क्या है. एंड आई एम हैप्पी, एंड आई फील कि इफ़ आई कैन हेल्प समवन, तो आई कैन टेल माई डार्केस्ट ट्रुथ्स only if it can help someone. If someone is using it against me, मेरे को अफेक्ट नहीं पड़ता. मेरे को अपनी इमेज की इतनी फ़र्क रह नहीं गई है, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, कि मेरी इमेज क्या है. एंड आई एम मोर वर्ल्डली, मोर मटेरियलिस्टिक देन एवर. नॉट मटेरियलिस्टिक एज इन थिंग्स और वो, पर मैं उस चीज़ को भी एम्ब्रेस करती हूँ, मैं खाने को भी एम्ब्रेस करती हूँ, मैं सोने को भी एम्ब्रेस करती हूँ, मैं लाइफ की ब्यूटी को, आर्ट को भी एम्ब्रेस करती हूँ फुली. आई डू नॉट उसको पुश नहीं करती जो मैं स्टार्टिंग में करती थी पहले अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, दैट आई हैव टू पुश दिस थिंग. नहीं, मेरे को इसी तरफ जाना है, मेरे को ये नहीं करना है. नाउ आई एम्ब्रेस एवरीथिंग. आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. These are the Beautiful. changes I feel. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. एस्ट्रोलॉजी को आपने स्टडी किया है, टैरेट का आपने स्टडी किया है, एंड दे आर ऑल लिंक्ड, राइट? सो माय अंडरस्टैंडिंग इज एस्ट्रोलॉजी एंड टैरेट कार्ड रीडिंग और न्यूमरोलॉजी, दे जस्ट गिव यू an information that where you are currently in your life. Yeah, yeah, yeah. Is there more to it? See, for tarot, yeah, it's more about the energy where you are, the answers which you cannot get on astrology, simpler answers. एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट थिंग. आई डोंट थिंक जो आजकल के पंडित हैं वो उसको जस्टिफाई करते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग. एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. बहुत लोगों के एस्ट्रोलॉजी चार्ट देख के, इवन इन माई फैमिली, आई अंडरस्टूड वाई द वे दे आर, वाई दे बिहेव द वे दे बिहेव. एस्ट्रोलॉजी डीपर है, इट्स वेरी रिलेटेड टू द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन. आपकी क्या इंस्टिंक्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप है, और देर आर वेरी लेस पीपल इवन ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म, या बहुत कम लोग हैं, बहुत कम ऐसे एस्ट्रोलॉजी के स्कूल्स हैं जो इतना डीप जाते हैं इन चीज़ों में. बिकॉज देर इज नॉट वन चार्ट विच यू रीड, देर इज D1, देर इज D9, देर इज D60, देर आर लाइक, आई थिंक देर आर numerous charts which you read for a person, and people just go for one chart and then they do the reading, bas ho gaya. Neither they see the degree, neither they see the nakshatra, neither they see the energy. नवामशा नहीं देखते. तो देर इज लॉट टू द एस्ट्रोलॉजी विच कैन, आप मतलब एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखो और आपको इंसान का पूरा पता लग जाएगा. व्हाट इज व्हाट अ पर्सन इज, कहाँ पे हडल्स हैं. एंड देर आर लाइक वेरी लिमिटेड ग्रहास विच आर इन 12 हाउसेज, राइट? तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें सब कुछ मिले. कुछ घर हैं मटेरियलिज्म के, कुछ घर हैं मोक्षा के, राइट? कुछ घर हैं इमोशंस के. प्लैनेट्स तो 9 ही हैं, 12 घर हैं. एक एक प्लैनेट वैसे तो सब में बैठता नहीं है, दो दो भी बैठते हैं बहुतों में, 80% ऑफ द टाइम्स. तब भी कुछ तो खाली रह जाएगा ना. अगर मोक्षा का घर भरेगा तो मटेरियलिज्म का रह जाएगा, मटेरियलिज्म का भरेगा तो वो रह जाएगा. तो कहीं ना कहीं तो मेलेफिक प्लैनेट्स भी बैठेंगे. तो इट्स
यू नो लाइक वी से कि जो अमीर, सबको सब कुछ नहीं मिलता, या तो आप अमीर हो तो आपको मन की शांति नहीं है, आपको मन की शांति है लेकिन पैसा नहीं है, आपका पार्टनर अच्छा है लेकिन ये नहीं है। सो वो बहुत लॉजिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि देयर आर 12 हाउसेस, देयर आर 9 प्लैनेट्स, देयर आर मेलेफिक, देयर आर बेनिफिक, और ऑब्वियसली इट्स वेरी लिमिटेड स्कोप कि किस कौन सा घर कहाँ बैठेगा। अगर आप वैसे भी कॉम्बिनेशन परमेंटेशन कर लो तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट एवरीथिंग ऑल द टाइम, So देयर how कैन नॉट does बी परफेक्ट how चार्ट। does this help how does this help in spiritual journey? Let's say you have my astrology chart, you read my chart, you know about me. Now I am seeking a reading from you. If I get to know myself, how is it going to help me in my spiritual journey? सी इट्स मेनली आपकी जर्नी तो आपकी ही है, बट इट्स अबाउट द प्लैनेट्स, राइट? प्लैनेट्स अफेक्ट यू, सूर्य को जल देना एंड ऑल दैट, इट डज हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडिया बिहाइंड इट, राइट? इवन आर moon cycles, our periods are related to the moon, phases of moon, तो actually में it's 28 days, it's not 30 days, right? Even जो हमारा calendar बना है that is as per solar बना है, right? So everything is related to the celestial bodies which we are around, and they are big celestial bodies and they have lot of impact on us, right? अगर उसको scientifically देखा जाए तो if I'll talk, maybe I'll take a hypothetical chart of a person, okay, of one of my friend. So I see her chart is good. अब उसका जैसे कि 8th हाउस में सेटन है, 8th हाउस इज कॉल्ड द हाउस ऑफ डेथ ऑल्सो, राइट? सेटन है अपनी राशि में, तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है, पॉजिटिव भी है। सो इफ आई सी हर लाइफ, उसका चार्ट देख के ना तो बड़ा रेजोनेट करता है कि यार आई कैन सी दैट यू कैन गो वेरी डीप इन एस्ट्रोलॉजी, राइट? बिकॉज इफ योर 8th हाउस इज स्ट्रॉन्ग, यू डू नॉट नो योर रूट चक्र इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। अगर आपको अपनी कुंडलिनी को उठाना है ना, योर 8th हाउस शुड बी स्ट्रॉन्ग। इट डिपेंड्स So आपके 8th हाउस में क्या है। अगर it आपको also gives remedies. It also gives remedies, right? इट डज यू कैन फॉर्मुलेट द रेमेडीज। मतलब जो आजकल के पंडित है ना वो सेम रेमेडीज देते हैं, ऐसा नहीं होता। चार्ट्स में बहुत कुछ होता है, आप रेंडमली रेमेडीज भी नहीं दे सकते टिल द टाइम यू डू नॉट रीड द एंटायर चार्ट्स। तो आई नो शी इज स्पिरिचुअली, शी इज वेरी इंक्लाइंड, शी इज टू गुड स्पिरिचुअली। लेकिन अब क्या है, तो ऑब्वियसली जो बेनिफिक प्लैनेट है वो मोक्षा के घरों में बैठ गया, हायर विजडम के घरों में बैठ गए, तो जो बेनिफिक मेलिफिक है, द बैड प्लैनेट्स, ऑब्वियसली दे विल डिस्ट्रीब्यूट टू अदर पार्ट्स, राइट? क्योंकि प्लैनेट वो तो ऐसे घूम रहा है ना सोलर सिस्टम। ऐसा तो होगा नहीं कि मरकरी के साथ प्लूटो हर टाइम, मतलब इट्स फार अवे ऑल द प्लैनेट्स आर ना, तो वो वैसे ही आपके चार्ट पे बैठेंगे। एंड देन आई सॉ कि हाँ, जॉब में उसका इशू रहेगा, पब्लिक में व्हेन शील गो शील हैव कॉन्फिडेंस के इश्यूज, तो वो है। बट देन स्पिरिचुअली शी कैन ग्रो टू अ नेक्स्ट लेवल। सो फॉर, इफ आई विल से व्हाट विल बी बेटर करियर फॉर हर, व्हाट शी एक्चुअली आस्क्ड मी, सो बेटर करियर फॉर हर विल बी अकल्ट साइंसेस, गोइंग इनटू अकल्ट साइंसेस रादर देन गोइंग फॉर अ जॉब, सम आईटी जॉब और समथिंग, बिकॉज उसमें उसको कंटेंट, शी वोंट बी कंटेंट। जब उसका, when in her chart I can see that she has a inclination towards spirituality, so it's better to go towards those careers which has spirituality into it, or maybe helping people or healing people, rather than going for something which is conventional or what everyone is doing। तो वो नहीं चलेगा, जो चीज़ नहीं चलेगी वो नहीं चलेगी। एंड देन यू सी हाउ थिंग्स विल बी विद योर पार्टनर। तो अगर लिखा है तो लिखा है, आज आपकी शादी इनसे हुई है चाहे उनसे हुई है, आपके चार्ट में लिखा है यहाँ पे प्रॉब्लम होनी है, तो वो प्रॉब्लम होगी ही होगी। though others chart also play a kind of role, right? But again आपके जो चार्ट में है वो है, and 99% time it's correct, it's 99। I have like, अभी I am learning, I am a beginner, I would say I have 80 charts, और जब मैं देखती हूँ ना I'm like okay, मतलब आप एक टाइम पे इंसान को देख के आप उसका बता सकते हो क्या कहाँ पे बैठा है, और आप देखते हो चार्ट, इट्स लाइक सिमिलर, मतलब यू नो इफ पर्सन इज ऑथेंटिक, इफ पर्सन इज नॉट ऑथेंटिक, और व्हाट नॉट, यू नो एवरीथिंग। एंड व्हेन यू आस्क, ऐसा लगता है आप उनकी साइकोलॉजी में टैप करते हो। एस्ट्रोलॉजी इज वेरी वास्ट, इट्स वेरी वास्ट, इट्स नॉट वो आजकल के पंडित जो है ना वहां तक नहीं है लिमिटेड, इट्स वेरी वेरी डीप सब्जेक्ट which you can get into, and you can do the practices when you know something is blocked, you have to work on this part of yours, you can actually, मतलब वो आपके बॉडी पार्ट्स को भी डिपिक्ट करता है, where you can get the issues, ब्लॉकेज कहाँ पे है, क्या इश्यूज है, you can see that very clearly and you can work on that। So astrology is very vast. Tarot is something which is intuition based. It's on my energy and your energy, where I need not to be biased. I just pick up the cards. I have trust on cards, and they come. They actually like 90% times वो एकदम correct आते हैं. And you are like, oh God, how do you know? Even I don't know. How do I know? मतलब seriously, it's not something जो सीखना है। हाँ, आप मीनिंग एक इंटरप्रिटेशन सीखते हो कार्ड्स की, बट इट्स समथिंग यू ट्रस्ट ऑन, समथिंग यू जस्ट बिलीव ऑन। आई थिंक ये टूल्स इसीलिए दिए गए हैं कि आपकी ईगो ना बढ़े, अदरवाइज पीपल लाइक पीपल आर ऑलवेज कंफ्यूज कि क्या आई शुड हैव समथिंग। जैसे भगवान है ना मंदिर में पत्थर के बने हुए, कि वहीं जाना पड़ेगा अपने आप अंदर टैप इन करने में, वैसे ये कार्ड्स हैं कि यहीं जाना पड़ेगा इंट्यूशन को जगाने में।
ऐसा नहीं है कि वो हर टाइम काम नहीं कर सकती, ऐसा नहीं आपको मंदिर ही जाना पड़ेगा, बट थिंग्स हैव एनर्जी एंड देन योर माइंडसेट हैव एनर्जी कि ओके दीज कार्ड्स हैव समथिंग। वो एक सारी एनर्जी का खेल है, आई फील। सो अगर हम कोई प्रैक्टिस करते हैं, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, मे बी विपश्यना, मे बी क्रिया योग, कैन दीज एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स और टैरोट रीडिंग्स चेंज ओवर टाइम? Tarot readings change over time. Astrology chart doesn't. The astrology chart never changes. वो तो the time you were born, your astrology chart is prepared. You choose to be in someone's womb. You chose your आपका जो भी था पिछला कर्मा, you chose it and you chose to be born on a specific day. Everything is written in astrology. A astrologer can tell you everything about your mother, about your father, about your grandparents, about your coming generation. Astrology chart can tell you everything before the day you are born, how your marriage will be, how your everything will be, because you chose that. ऐसा नहीं है कि किसी के साथ बुरा होता है कुछ होता है, they are previous karmas. आप previous कर्मास को ठीक करने के लिए आए हो, you have chose something for yourself, you have chosen a tough father because you had ego issues before, you had things before, you were too much pampered before, maybe. Very simple example. Then you have chose a tough parents, you have chose tougher life, and you do not know when you're a soul you choose that because you have that sort of wisdom. But when you come in a body you're like, now what the fuck have I chosen? आई कैन वो रिलेट मेमोरीज विद दैट। मेमोरीज चली जाती है ना वो। सो इट्स लाइक एक दूसरे के साथ, तभी तो बोलते हैं ना खून के रिश्ते। यू हैव राइट। चोजन टू बी विद ईच अदर। So this सो is about मूविंग ऑन। astrology, and then there is breath work. So we can make a episode for everything, one episode. So I think it's a deeper. There is a depth in everything. So by getting into the depth of everything, by end of it, I understood कि सब ना ego का खेल है और सब दिमाग का खेल है. You can you can make your mind to do whatever it wants to do, and the moment you drop your ego, सब चीज़ें align हो जाती हैं और अपने आप चीज़ें आती हैं. I think wisdom comes to you when you drop your ego. ट्रू, ट्रू। आपकी लाइफ में वो कौन-सा मोमेंट था जब आपको लगा कि आपने ईगो ड्रॉप कर दिया एंड हाउ थिंग्स टर्न्ड आउट? बहुत बार, लॉट ऑफ मोमेंट्स। सो इवन इन माय एस्ट्रोलॉजी चार्ट इट्स देयर कि आई हैड इशू विद सेल्फ कॉन्फिडेंस बिफोर, लॉट ऑफ इश्यूज विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी भी है, मेरे को लगता है, मतलब इतना कुछ सीख के भी मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम नॉट रेडी, मैं नहीं दे पाऊंगी, कर नहीं पाऊंगी। हु आई एम टू हील समवन, मेरे में नहीं है यार, ऐसा लगता है मुझे सीरियसली। तो ईगो बहुत ऊपर भी गया है और गिरा भी है, लॉट ऑफ मोमेंट्स, बार बार गिरा है, बार बार गिरा है, इस लेवल तक गिरा है, इस लेवल तक ऐसा लगता था कि यार कुछ भी नहीं बचा है, फैमिली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यार, करियर भी नहीं है, फैमिली भी नहीं है, शायद मेरे डिसीजंस ही गलत रहे हैं लाइफ के। एंड देन आई वाज लाइक कि ठीक है, जब मैं बिल्कुल नीचे गिरी हूँ ना, तो मेरे में एक हम्बलनेस के साथ एक इनसाइट आई है बड़ी स्ट्रांग। एंड आई फील everyone should go through tough times, otherwise person doesn't understand one's worth। मुश्किल टाइम से सीख के ही इंसान निकलता है। तो बहुत बार गिरी है ईगो, बहुत बार, अभी भी गिरती है, बहुत बार गिरती है। आई थिंक आजकल 2-3 दिन से मेरे पास भी ये चल रहा था कि जब तक आप चिज़ल ना हो जाओ ना अच्छे से, आप में कॉन्फिडेंस आ नहीं सकता। नहीं आप आ सकता। कुछ भी अफ़र्मेशन करके आप मैनिफेस्ट कर लो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता जब तक यू डोंट वॉक दैट पाथ अंटिल अनलेस यू डर्टी योर हैंड्स योरसेल्फ, तब तक वो आ नहीं सकता आपके पास। राइट, ट्रू। एंड आई थिंक वी से ना दैट हम अपने आप को जानने के लिए सब कुछ करते हैं, वी गो फॉर एफर्मेशन, वी गो फॉर दिस, लाइक आई एम वेयरिंग क्रिस्टल एंड एवरीथिंग। लेकिन ये बाहर की चीज़ें हैं, ये बहुत बाहर की चीज़ें हैं। डेप्थ में किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सोसाइटी की चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है जो ऐसे करो, ये करो, वो करो, सुबह उठो रात को सो, ये सब ना, आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रिक्वायर्ड इफ यू कैन गो डीपर इनटू इट, बट जस्ट बिकॉज पीपल कैन नॉट गो डीपर इनटू इट, तो हम सरफेस की चीज़ें उठा लेते हैं। अच्छा, डू द एफर्मेशंस, वेयर द क्रिस्टल्स, हर्बल टीज पियो, या जो भी है, मतलब सॉर्ट ऑफ वी गॉट ऑन टू द अपर सरफेस। पर ये है कि हाँ, अपर सरफेस हेल्प्स यू टू क्रिएट दैट एनर्जी, बट टिल द टाइम आप डीप नहीं जाते ना, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ these things as well, I feel। And people are like, okay, this is the vibe, person doesn't have a good vibe, doesn't have a good energy and all that, just because your ego is saying that, your ego is playing games with you, एंड यू गेट इनटू द ट्रैप ऑफ इट अगेन एंड अगेन। सबसे पहले तो ईगो आपको ही मारता है। अगर ईगो आपको ही नहीं मार रहा है ना और दूसरों के लिए बोल रहा है, तो वो ईगो आपके साथ बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है एंड यू आर लेटिंग इट प्ले। तो ईगो या सबसे या पहले इट इट टेक्स यू टू द एशेस कि भाई तू तो कुछ ये नहीं जो है जो। बाउंड्री सेट करने का कंसेप्ट है दैट इज ऑल ईगो फ्रेम्ड।
मेरा I ऐसा think, I एक्सपीरियंस think, है I एटलीस्ट. think, I think, yeah. Everything in spirituality also there is a lot of ego. इतना ज़्यादा पैसा आ गया है in practices, right? Astrology ले लो आप, crystal healing and इतना ज़्यादा पैसा involve हो गया है. We charge this, we are worth it. मतलब ये वाला concept मेरे mind में आई ना थिंक जो बैठता नहीं. स्पिरिचुअल कोचेस हैं आजकल मीडिया पे, मोस्ट ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट मनी मैनिफेस्टेशन. आई थिंक Money, अगर आप घूम फिर के मनी पे ही अटक रहे हो तो वेयर इज द ग्रोथ? क्योंकि मनी इज जस्ट अ मीडियम, वो एंड गोल नहीं हो सकता कभी भी. right? Whatever you want to express, however you want to express yourself, be it a painting, be it a podcast, be it travel, उसको करने के लिए आपको जो चाहिए, money is just that. It's just a medium with which you can express yourself. It's not an end goal. Right. और आई थिंक बहुत सारे स्पिरिचुअल कोचेस जब इसको प्रमोट करते हैं कि यू कैन बिल्ड योर फाइनेंसेस, यू कैन बिल्ड योर मनी, यू कैन हैव अबंडेंस, डू दीज अफर्मेशंस, वो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक सेब जो है ना पूरी बास्केट खराब करता है. I have seen that. I won't talk too much about it, but इवन इवन मेरे पॉडकास्ट पे भी आई हैव रिलीज्ड वीडियो कि लैक से आप वेल्थ में जा रहे हो या आप अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज व्हाट पीपल आर सीकिंग. दे आर सीकिंग मनी, ऑल ऑफ देम आर सीकिंग मनी. माय एंड आइडिया डजंट, मतलब मेरा आइडिया इसके साथ बैठता नहीं है. और ये बहुत बुरी बात है. मतलब आई एम नॉट वेरी, मतलब मैं बहुत उस प्राउड के साथ नहीं बोल रही हूँ ये चीज. दैट इज द रीजन आई एम अनेबल टू डू एनीथिंग आफ्टर डूइंग एवरीथिंग. आफ्टर डूइंग एवरीथिंग सी, मतलब आई एम इनटू aura healing, I am into this crystal healing, and then there is breath work, then there is tarot, then there is astrology, then there is yoga, pranayama, pran vidya, and lot of things, right? But पता नहीं क्यों मेरे को लगता है यार, अपने वो ठीक है, आप किसी की हेल्प करो, हेल्प तो हेल्प होती है ना, पैसों से थोड़ी होती है हेल्प. If someone is donating you something, that's fine. It can be, for me it can be donation based, because right now I'm earning, I have my job, so I am getting my money from my work, right? तो मेरे को इतना पैसों का है नहीं कि इन चीज़ों से मेरे पास पैसा है. मे बी लेटर ऑन, बट लेटर ऑन भी इट वोंट बी लाइक टू मच मनी मनी. मतलब वो अपने आप आएगा तो अच्छी बात है, इट्स एनर्जी एक्सचेंज. नहीं आएगा तो भी ठीक है, जो लिखा है वो होगा. तो मेरे से ना वो पैसे का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती मैं. टू अ लिमिटेड पॉइंट आई कैन, बट आई कैन नॉट गेट इन टू इट टू मच. आई डोंट लाइक इट. मेरे को लगता है मेरी स्पिरिचुअलिटी हैम्पर होती है उससे, या मेरी नॉलेज, या जो मेरा एक विजडम है, या जो मैंने पाया है, या जो मेरे को ग्रेस ने दिया है ना, वो इट गेट्स हार्म्ड बाय हर चीज़ को पैसे में तोल के मैं नहीं कर पाऊंगी. मेरे से नहीं होगा. पीपल डू इट, एंड आई हैव सीन वेरी गुड, very knowledgeable astrologers. I have seen very known tarot card readers who make their living by it. पर मेरे साथ ये कॉन्सेप्ट नहीं रेजोनेट होता. मैं कोशिश कर रही हूँ इसको रेजोनेट करने का, बट आई डोंट नो. आई थिंक एक एलर्जी मनी से नहीं है, एक एलर्जी फाइनेंसेस से नहीं है कि नहीं होना चाहिए. ये मतलब मुझे स्पिरिचुअलिटी मेरी खराब कर देगा. आई थिंक मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मनी विल स्पॉइल माय स्पिरिचुअल ग्रोथ, बट मेरे पास ये है कि दिस इज नॉट माय एंड गोल. ये है गुड, ये नहीं है टू गुड. नहीं, if I'm putting spirituality into my practices, the practice which I have gained from, अगर मैं विपस्सना भी बोल देती हूँ कि I'll give you maybe we can sit in विपस्सना या जो भी है, and maybe I'll be charging समथिंग, या नहीं होगा. आई कैन नॉट, क्योंकि मैं फिर उसी इंटेंशन के साथ जाऊंगी आगे. मेरे से नहीं होगा. आई कैन नॉट डू इट. हाँ, मे बी फॉर फ्यू प्रैक्टिसेस देर कैन बी डोनेशन बेस्ड थिंग, बट आई एम नॉट श्योर. लाइक I cannot even talk about it because I don't know if I'm right or if I'm wrong, and people will get offended by this. But this is my way. I do not want to make it. फिर तो मैं जॉब ही कर लूँ यार, फिर मैं बिजनेस ना करूँ. फिर मैं स्पिरिचुअलिटी में क्यों ढूंढूं इन चीज़ों को. I know if astrologer is reading someone's chart, obviously यार there should be an energy exchange. लेकिन वो पैसों के लिए ही किया जाए, या how much I am earning in a day. राइट. वो जो वो माइंडसेट होता है ना, आज कितने लोग आएंगे, अच्छा इसके लिए टर्निंग चंदा इट टू अ करेंगे, मेरे पास प्रोफेशन, काफी टर्निंग इट टाइम. इनटू अ प्रोफेशन एज अ होल सोल अर्निंग राइट, सोर्स. आई थिंक वो कहीं हैम्पर करता है. मतलब राइट. वही अगर आपका अल्टीमेट सोर्स है इनकम का, तो आई थिंक वो जो उसका बट देन इंटेंशन है आपका वो कहीं आउटलुक ना कहीं कैसा है? स्पॉइल हो जाता है. आपका आउटलुक कैसा है? यू आर टेलिंग अ पर्सन समथिंग सो दैट पर्सन इज कमिंग बैक टू यू अगेन, और यू आर कीपिंग समवन हुक्ड अप इन योर tantra. वो एक अलग ईगो है ना. एंड स्पिरिचुअल ईगो इज द वर्स्ट ईगो अ पर्सन कैन हैव. Rest egos can be dealt with, or they go over time, they come over time, but spiritual ego is the worst ego. And I think it is the worst karma a person can create on oneself. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में लॉजिक होता ही नहीं है. आप इन चीज़ों में ये चीज़ें ढूंढने लग गए जो दुनियादारी की है ना, उसका वो नहीं रह जाएगा, ग्रेस नहीं रह जाएगा. आई थिंक स्पिरिचुअल ईगो को ना सिर्फ एक गुरु ही तार सकता है. हाँ, वो बहुत जब अच्छा. अपनी लाठी चलाते हैं, वो जब राइट, अपनी लाठी चलाते हैं तो अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं. राइट, राइट, राइट. या आई थिंक अ गुरु कैन सी.
And on this note, do you have a guru in your life who is like guiding you in your journey? Or you have Um, multiple gurus? Multiple gurus, I would say, but हाँ, I have taken diksha from a guru, which was in my childhood again. वो तो I do not express much of that experience, but हाँ, राधा स्वामी ही हैं, and I have. It's not like I do their practices or I go there regularly. लेकिन जब भी कुछ डाउन होता है ना, ही इज़ द वन हु कम्स बैक ऑफ माई माइंड, एंड ही इज़ द वन हु शोड मी दैट थिंग्स आर बियॉन्ड लॉजिक। एंड ऐसा नहीं है मैंने बात किया है, कुछ किया, बट महसूस किया है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी महसूस किया, अभी तो ईगो अपनी गेम्स प्ले कर सकती है, बचपन में किया है जब पता भी नहीं था कि ये है। तो उस चीज़ को मैं डिनाई कर ही नहीं सकती, वो इट्स अनडिनाइबल। सो या आई वुड से ही इज़ माई गुरु, एंड देन लॉट ऑफ गुरुज regularly. I've learned breath work, then I have learned tarot. I have guru for everything, and I have learned something from those gurus. And then the enlightened masters, because I think there are too many gurus in India right now. But to identify that enlightened masters is also a tough thing. So Ramana Maharishi is one of them. If you might be aware, Mhm. I'm not sure if you have heard Muji. Muji is उनके अभी जो हैं शिष्य. Ramana Maharishi is one of them. Neem Karoli Baba is one of them. Yeah, I think. And you should see the journey of Ramakrishna Paramhans. Amazing, amazing journey. I heard about him when I was छोटी थी मैं. एक-एक स्टोरी सुनी, फिर वो बढ़ती गई. So he attained moksha through Kali Upasana. Then he left it, not left his Upasana. Then he attained moksha through Islam. Then he attained moksha through Krishna Bhakti. And when he attained moksha through Krishna Bhakti, he was so much indulged into that he started getting his periods. फॉरेन से लोग आए थे साइंटिस्ट्स टू चेक व्हाट इज हैपनिंग. इनकी आवाज़ चेंज हो गई टू फेमिनिन वॉइस, एंड हिज बॉडी पार्ट्स ऑल्सो स्टार्टेड चेंजिंग लाइक ब्रेस्ट्स एंड ऑल. एंड दे वर लाइक व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि उस कृष्ण भक्ति में अपने आप को राधा मानते थे, जो भी उनके पुजारी होते थे आज भी मानते हैं. एवरीथिंग चेंज्ड व्हेन ही अटेन्ड मोक्षा थ्रू इस्लाम. काली मंदिर से होके जाते थे, काली मंदिर की तरफ भी नहीं देखते थे, बिल्कुल उसमें खो गए थे. व्हेन ही अटेन्ड मोक्षा थ्रू माँ काली, उसकी Why भी एक so many times? एक बार ही attain हो he गया तो wanted होगा to तो tell होगा. the world, he wanted to tell the world that you can attain enlightenment through every path. There is no one path for it. So अगर आप देखोगे ना, इसकी डेप्थ में जाओगे, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो लगेगा कि क्यों करना है, ईगो है, वो है. नहीं, ही वॉज, आप एक्चुअल में पूरी स्टोरी पढ़ोगे, यू विल बी अमेज्ड कि, एंड ही वॉज गुरु ऑफ विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद. तो जो आप गुरु के बारे में बोल रहे हो ना, इनकी जो कॉन्वर्सेशन है ना स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की, एंड यूल बी लाइक वाओ, उन्होंने विवेकानंद का ईगो जहां जहां पकड़ा और जहां जहां उनको सुनाया, एंड द डायलॉग डिलीवरी एंड एवरीथिंग, इट्स breathtaking. तो ही, इट्स नॉट लाइक ही वांटेड टू शो समथिंग या किसी दुनिया को दिखाना था. ऐसा भी नहीं थी कि इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग थी, ऐसा कुछ था. ही जस्ट वांटेड टू सी कि ओके, इट कैन बी डन फ्रॉम एवरी पाथ. इट्स नॉट लाइक वन पाथ यू कैन अटेन समथिंग फ्रॉम. पीपल डू नॉट अटेन इट फ्रॉम वन, मतलब 100 जन्म लग जाते हैं, एंड ही अटेन्ड इट फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेसेस थ्रू 3 डिफरेंट प्रैक्टिसेस, जस्ट टू शो द वर्ल्ड दैट इट्स नॉट, मतलब. एंड आई थिंक यही है जिनके बारे में हमने सुना है, हु एक्चुअली हैड, जिनको दर्शन हुए काली माँ के, उनको दर्शन हुए काली माँ के, और तो उनके गुरु थे. एंड ही यूज्ड टू से कि मैं ना काली माँ के दर्शन करता हूँ और उनके रूप में इतना खो जाता हूँ कि मैं मस्त हो जाता हूँ, मेरे को कुछ ध्यान ही नहीं रहता. गुरु ने बोला अगर मोक्ष को प्राप्त करना है ना, तो काली माँ को भी मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा ऐसे ना, अपने उससे हटाना पड़ेगा. इट इज सेड दैट ना, अगर आपके एनलाइटनमेंट में बुद्धा भी आए, दैट मतलब लेट हिम गो, इनको मार दो, Side. तोता को भी मार दो, यू माइट हैव हर्ड दैट. तो काली माँ को भी मारना पड़ेगा. तो इनके गुरु थे तोतापुरी. आई थिंक ही वाज मेडिटेटिंग एंड ही सेड कि द मोमेंट आई विल डू दिस ऑन योर फोरहेड, मैं छुरी से करूंगा, उसी टाइम अंदर मन में छुरी चला देना काली माँ पे. एंड ही डिड दैट. नहीं हो पाया स्टार्टिंग में, देन ही एंड में ही डिड दैट, और उन्होंने भी अंदर जो काली माँ की मूर्ति उनको वो करती थी, उस पर छुरी चला दी, मतलब सॉर्ट ऑफ तलवार से काट दिया. 6 दिन तक ही वॉज इन स्टेट ऑफ ब्लिस, ये उठे नहीं, ही वॉज इन स्टेट ऑफ ब्लिस. एंड व्हेन ही केम बैक ही वॉज लाइक व्हाई डिड आई कम बैक, आई वॉज इन सच अ सरीन प्लेस, व्हाई डिड शी, मतलब उन्होंने मेरे को वापस, काली माँ ने मेरे को वापस क्यों वो कर दिया, जगा दिया. आई वॉज इन सच अ सरीन प्लेस. सो इट्स लाइक यू हैव टू, जैसे हम बोलते हैं ना, अपनी ईगो को भी गिराना पड़ेगा. तो जो तुम्हारा एक देवता है, एक देवी है, जिनको तुम मानते हो ना, एक टाइम पे सब कुछ ही छोड़ना पड़ता है. एक टाइम पे जो तुम्हारी माइंड जो समझता है ना कि ओके दिस इज द वन एंड दिस कैन टेक मी समवेयर, वो गुरु भी बोल देता है कि मेरे को भी छोड़ दो, अब मैं भी नहीं आगे चलूंगा, लेकिन वो बहुत आगे की स्टेज है. इट्स आई थिंक वेरी वेरी फ्यू पीपल जिनको कुछ ग्रेस भी होती है, कुछ पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं, और इतनी ज़्यादा डेडिकेशन भी होती है, दे रीच दैट स्टेज. बट इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी. आई थिंक एवरी वन शुड रीड अबाउट रमणा,
Maharishi. Everyone should read Ashtavakra Mahagita. Beautiful. And it is called Mahagita. There is a reason behind it. दिस इज द ओनली ग्रंथ जिसको सिर्फ सुन के अष्टावक्र अष्टावक्र ने सुनाया था। सुन के राजा जनक एनलाइटन हो गए थे। आज तक कोई ऐसा हिस्ट्री में नहीं रहा है कि सुन के आप किसी चीज को सुन के एनलाइटन हो जाओ। अष्टावक्र महागीता इज सच कि सिर्फ सुन के इंसान एनलाइटन हो सकता है। एंड देन देयर इज गीता ऑब्वियसली, or Tao. These are few of the things which have just changed my thought process about reality and life and spirituality overall. Amazing. I can like talk hours. I know we set a time कि हम 50 minutes में इसको करेंगे, but I'm so lost in what you are sharing and I'm so fascinated. I No, you think can I'm cut going a to. lot of there are a lot of things which can be removed. It's fine. I don't think. I think each and every word we have talked about here gem, is gem and valuable. It's magical for me. I mean, I am in another zone. शायद सुन के मेरा enlightenment हो रहा है कहीं कहीं. I am happy because I don't share such things with people too much, because people don't understand. Everyone doesn't. Uh, so मेरे को खुद अच्छा लग रहा है. I am feeling happy. Thanks for Thank you. offering me this chance. Thank you. I mean, I'm mesmerized right now. I'm speechless. Any last message that you have for viewers? I think you have shared a lot about what literature or philosophy they can read about. And is there anything else that you want to? So I think mostly people ask me that you are learning so many things, you're learning so many modalities, what you're doing with it. So I think I'm learning it all, whatever fascinates me, and by end of it, I understand that it's all about gaining the ego to such an extent that at the end you lose it all. So it's about losing it all and letting it go. It's not about accumulating the knowledge. I don't think it ever should be, specifically if it is about the spiritual journey. If you're doing PhD on something, it's good to accumulate knowledge. But spirituality में है नहीं, सीख के ना उसको अंदर एक ड्रॉप भी चला जाए ना आपकी कॉन्शियसनेस में, और एक होता है ना कि समझ आ गया ना, आई हैव अंडरस्टूड दिस इज हाउ लाइफ इज। एक भी ग्रंथ, एक भी बुक, एक भी स्पिरिचुअल मास्टर, एक भी प्रैक्टिस आपको एक चीज सिखा देना, एक भी बूंद के, आई थिंक इट्स वर्थ इट. So it's about letting go. So my journey will continue and I will keep on learning new things till the time I let go of everything and everything drops and my ego just gets to the height and just drops down. Beautiful and all the very best in your journey forward. We will stay connected Within. and I think I have lot of soul work with you. I have lot of things that I want to learn from you Sure, and please, be please. inspired. So definitely we're gonna stay in touch and viewers अगर आपको goosebumps आ रहे हैं, if this is enlightening for you, if you got insights in your journey, do share it with us in the comment section below and namaste for now. Thank you so much, Matri. Thank you Thank so you. much for your time and energy.